Good evening, everyone. My name is Vitika, and I'm your moderator for today. So we are now here moving on to the most important segments, that is the panel discussion. And the theme of the whole discussion is Creators and Public Health, a New Age of Awareness. So today on the panel, we have leaders from public health, social activism, and the creators community joining hands together for one cause, that is HIV and AIDS awareness. So, introducing you all to the panelists. So, we first have Dr. Vijay Kumar Karanjkar, Additional Project Director at MDEX. We have Dr. Navnath Jadhav, Deputy Director CST MDEX. We have Shri Umesh Guge, Deputy Director MDEX. We have Mr. Rajveer Singh, Creator and Digital Influencer. And we have Ms. Seher Bhamla, Social Activist. So today's discussion is simple yet powerful, how creators and public health system work together to burst myths, reduce stigma, and build a healthier, more informed Mumbai. So let's begin with Mr. Dr. Navnath, sir. So why do you think many people still feel scared or embarrassed about HIV testing? First of all, they don't have proper information about this. Second, I think they are afraid of the diagnosis. Once there comes the positive, suppose by chance, then they'll be judged by people. They'll be isolated. Social isolation will be there, and there'll be a lot of stress, mental stress. People don't want to go through this. That's one of the thing. Second thing, there's a myth, biggest myth in the India. This type of diseases cannot occur in my family or with me. We also read so many diseases about so many rare cases, rare diseases, congenital diseases regarding the children and all. But then when it comes to us, we feel I cannot I cannot have the disease. So that is one the myth is there. Second thing is that the children, the college students especially, they feel the people have myths about it. This can be spread by sharing, say, tiffin box or sitting together, eating together, and sharing using this same washroom which is used by the person who is positive. Basically, there are main four reasons for the transmission of the HIV. That is, one of the main reason in India at present. It is through the unprotected sex from mother to child. If mother is positive and is not taking proper treatment, then the child which can be delivered by her can have a HIV. Second thing, those people are using intravenous drugs. Those nowadays, a lot of youths are involved in that. So those students or those boys or those community people who are using the IUDs or intravenous drugs, if they share the needles, then the needle can pass on this basically. This. And second, through the blood transfusions. But nowadays, now the type of test we are doing on the blood, so those detection of the HIV is done at very early stage. So this is the mode of transmission is very less. So one of the main mode of transmission is unprotected sex among the people. That's what the main myth is there. Okay, thank you. Okay. थोड़ा सा मैं भी ऐड करना चाहता हूँ 2 ही मिनट कि किसी भी चीज़ से डर क्यों लगता है, क्योंकि उसकी जानकारी हमको पूरी नहीं रहती है. हम जब कोविड एरा से अभी हम निकले हैं, अब हम सबको याद है कि 20 में जब मार्च 20 में बहुत कम कोविड के केसेस थे, लेकिन डर बहुत था. कहीं पर भी पॉजिटिव आया तो एक डर, एक सोसाइटी में भी किसी का पॉजिटिव आता है, कोई होता है तो एकदम पुलिस को बताया था, एम्बुलेंस बुलाई थी, ये हुआ था. आज क्या है, आज अगर कोविड की टेस्ट भी करते हैं क्या, हम नहीं करते हैं. क्यों? हमको पता हो चला है कि अभी कोविड से डेथ नहीं होती है. कि शुरू में HIV जब आया था उसके लिए कोई दवाई अवेलेबल नहीं थी. उसका जो भी प्रचार भी अवेयरनेस के लिए किया होगा, जानकारी बताने के लिए किया होगा, लेकिन एक डर पैदा हो गया था कि HIV यानी डेथ. किसी को अगर HIV हो जाता है, एड्स हो जाता है तो डेथ ही हो जाएगी और कोई नहीं. और उसके साथ में एक डर बैठ गया था कहीं पर. तो वो डर आज भी बहुत ज़्यादा अंदर जाके बैठा हुआ है. जब भी हम HIV के बारे में सोचते हैं तो वो डर आगे आता है. उसके साथ में सर ने भी जैसे बताया कि हर बार हम सोचते हैं कि HIV जो है उसके बाद में
कोई तो हमारे ऊपर ये करेगा कि हाँ ये इसी चीज़ों से फैलता है, तो हमारे ऊपर कुछ स्टिग्मा लगाएगा, लेबल लगाएगा, तो वो एक डर अंदर बैठता है। इसलिए हम एचआईवी टेस्ट करने के लिए भी चूज़ नहीं करते। कोई नहीं जाता है कि एचआईवी टेस्ट भी करे, रिजल्ट देखना, उसके बाद में दवाई लेना, वो तो अलग बात है। लेकिन आज सिचुएशन वैसी नहीं है। HIV is manageable disease as good as डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन। डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन जब होता है उसकी दवाई हमको ज़िंदगी भर लेनी पड़ती है, जो भी गोली है। HIV की भी एक ही गोली है जिसमें 3 गोलियों का कॉम्बिनेशन है। सिंगल ड्रग जो है, पिल है, वो हर दिन लिया तो भी HIV का जो भी पेशेंट है अच्छी लाइफ जी सकता है पूरी। तो ये कहीं पर तो जाके हर किसी को पता होना चाहिए, उसके साथ ये डर कम हो जाएगा, उसके साथ ही स्टिग्मा निकल जाएगा और तभी अवेयरनेस आएगा और जो चेंज है वो आ सकेगा। थैंक यू। So the next question is for Ms. Seher. So based on your grassroots experience, what health misconceptions are most common in your community? So, hello, my work is mainly on climate change, right? So, a lot of people think that plastic bottles, which is a very big threat to our health and to our planet. Now, people are still aware, but when I had started, I was slightly more younger. So that time it was just okay, plastic is normal. It's not as bad as the people didn't know the facts about it. So this one bottle, it turns into if you discard any single use plastic, it turns it out to, it becomes microplastic. See, animals eat it because they think it is food. And then when they eat it, कुछ वहाँ ही मर जाते हैं, जो बच जाते हैं, we end up consuming them. So plastic now today, if you see, microplastics are found in everywhere, in your body, in your in the air, in the soil, in the food that we are eating. It is everywhere, microplastics. We've heard even in the mother's womb it's being found, even in the brain it's been found. There are so many theories that keep coming, and now especially air pollution being a major topic of discussion amongst every room that we are going in. Even that, it is very, very harmful, as we know, because if we want a healthy economy and if we want our economy to even grow, the humans also have to be very healthy, be it any disease that you have. So we have to be very careful about what we are eating, I think, and our lifestyle. But I don't feel like preaching this because I myself uh, eat very, very unhealthy food. So iske liye I didn't want to say that. I should first take this message for myself, and then maybe you all can also follow it. And yeah, air pollution is a very big impact, and the government has to do something, but even we as citizens can, you know, do a little bit, maybe walk short distances. Even though I know now जिनको सुबह भी walk करने जाना रहता है वो भी छोड़ दिए हैं जाना. मतलब बहुत it's not the best air we are breathing, and it is dangerous, it is hazardous for our body, but we will tackle this, and we will. And my personal given for this situation is that we regularly keep doing tree plantations, not once but every week we've been doing tree plantations. Small करके भी हम करते हैं, 5 trees, 10 trees, 15 trees, depends on the place, situation, depends on how many students are coming. And even the BMC has been so supportive in all my climate change initiatives. Every time I do something, the gardening department is there, the waste management team is there. They are the most supportive. I genuinely think that without the BMC, I wouldn't be able to do anything. Weekly beach cleanups that we do. So you guys, there are so many creators over here. You all should join us. Even I'm on Instagram where I keep on updating things. And yeah, we can make this eco community. Yeah, thank you. So the next question is for Mr. Vijay Kumar, sir. Hey, okay. So what is the biggest barrier MDEX faces today?
stigma, misinformation, or fear of getting tested? हम अभी डिस्कस किया था कि सबसे बड़ा जो बैरियर है यहाँ पे मिस इन्फॉर्मेशन है। जानकारी ही बचाव है यहाँ पे। जानकारी ही हमको सही दिशा दिखाती है। अगर कहीं पे अंधेरा होता है तो हमें डर लगता है, अगर वहीं पे अगर लाइट है, उजियाला है, तो हमें डर लगेगा क्या? नहीं लगेगा। नॉलेज ही यहाँ पे लाइट है, उजियाला है। अगर ये कहीं पर भी एक करेक्ट इन्फॉर्मेशन दी जाएगी कि HIV कैसे फैलता है, कैसे नहीं फैलता है, तो हमको डर नहीं लगेगा। हमारे घर में कोई HIV बाधित रहेगा या हमारे ऑफिस में कोई HIV बाधित रहेगा, हमको पता है कि इससे हमको नहीं फैलने वाला है, तो हम उसके साथ में भेदभाव करेंगे? नहीं करेंगे। अगर HIV के बारे में जो डर है वो हमारे अंदर से चला गया, तो HIV की टेस्ट अगर करना है तो हम खुद जाके आगे आएंगे। कहीं पर भी कैंप लगाते हैं तो डायबिटीज़ का, हाइपरटेंशन का अगर कैंप है तो लोग लाइन लगा के आ जाते हैं। अगर HIV का कैंप होता है तो नहीं आता है सामने। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि वो डर बैठा है हमारे अंदर। वो डर तभी निकलेगा जब इन्फॉर्मेशन, सही इन्फॉर्मेशन जाएगी। तो मेरे ख्याल से मिस इन्फॉर्मेशन बिगेस्ट बैरियर है और नॉलेज और करेक्ट इन्फॉर्मेशन ही उसके ऊपर सॉल्यूशन है। Absolutely right. So, Mr. Rajveer, what stops most creators from making health content? Low engagement, fear of mistakes, lack of knowledge, or just negligence? So I have to answer this on behalf of all the creators or just my view? It could be both. Okay, if it is both, then I feel there's a doctor, Dr. Lakshmi. She has said there's lack of vitamin M. So I don't mean lack of vitamin M is not money, it's lack of vitamin motivation. So guys, firstly, there is a lot of misinformation, like he said. बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कि हम क्यों करें, गवर्नमेंट हमको क्या दे रही है. सो व्हेन वी टॉक अबाउट इनिशिएटिव्स, तो दो तरफ से होता है कि इफ देयर आर इनिशिएटिव्स लाइक टुडे, आज आप लोग ने सब मीट एंड ग्रीट किया है, यू हैव गिवन अ प्लेटफॉर्म टू द क्रिएटर्स, सो इट इज़ एन अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन टू जॉइन. बट जब ये हुआ ही नहीं तो ऑब्वियसली क्रिएटर्स वुड नॉट स्टेप अप. अपने आप से कोई नहीं आता सर जब तक एक मोटिवेशन नहीं है. एंड व्हेन वी से के लाइक व्हाट स्टॉप्स क्रिएटर्स, बहुत सारे कैमरास फिर से मुझे वही दिख रहे हैं. सो आई डोंट माइंड सर के साथ मैं अभी अभी एक हेल्थ रील बना सकता हूँ. इफ एनीवन कैन गेट अ ग्लास ऑफ और अ बॉटल ऑफ वाटर फॉर सर प्लीज. सर इट्स सेड दैट वाटर इज वेरी यूजफुल फॉर योर हेल्थ. आपने आज सुबह से 8 ग्लास पानी तो नहीं पिया होगा. So please consume that water and let's put it up that drinking water is very essential. So this is my way of contributing to a health message. I would also say जब बिस्लरी आया था इंडिया में, आज हम गांधी जी दे के बिस्लरी की बॉटल्स खरीदते हैं, बट गांधी जी ने बिस्लरी नहीं देखा है. तो जैसे आज पानी बिक रहा है, आई एम वेरी श्योर थोड़े टाइम में हवा भी बिकने वाली, ऑक्सीजन सिलेंडर्स बिकने वाले हैं. सो गाइज अगेन when we say health, health is not about only about having medicines or supplements. Health is just having healthy food and consuming water. I don't know, there are few doctors here, content creators here. I may be wrong, and if anyone is a doctor, please correct me. I can actually say consuming water is more healthier than consuming energy drinks. So जो आप लोग एनर्जी ड्रिंक पीते हो, उसके बदले अगर आप वाटर से ही रिप्लेस कर दोगे, जो एक एक्चुअली फ्री रिसोर्स है, would also affect a lot for your health. I mean, हम बच्चों को एनर्जी ड्रिंक पिलाते हैं. I have seen kids drinking some energy drinks, which is actually not good. It contains caffeine, and same if उसके बदले अगर हम पानी पी रहे हैं, तो वो that is actually energizing us. जबकि health drinks हमको एनर्जी देती हैं, but वो temporary energy है. So that is my thing. Okay, and when you say what stops us from making it, एक fear होता है कि अगर मैंने कुछ बोल दिया is wrong, कल को पूरा मीडिया, पूरे फेटर्निटी, पूरा गवर्नमेंट हमारे पीछे लग जाएगा. रादर देन वी बीइंग सेड कि सर ने बोला आपको कुछ सपोर्ट चाहिए, हम आपको सपोर्ट करेंगे कैसे वीडियोस बनाने हैं. बट इज देयर एन अश्योरेंस कि कल को हम हेल्थ रील्स बनाते हैं एंड वी डू अ मिस्टेक, रादर देन करेक्टिंग अस, गवर्नमेंट एक्शन नहीं लेगी, ऐसा कुछ अश्योरेंस हो सकता है सर? अगर कोई भी रील बनानी है, कोई आपको बनाना है, तो हम आपके साथ में हैं ना. आप हमको भेजिए, हम उसको पहले देखेंगे. आपको लगता है तो करेक्शन करना है तो करेक्ट भी करेंगे. बहुत सिंपल है. HIV और एड्स के बारे में रील बनाना तो बहुत ही सिंपल है.
4 रीज़न है जिससे फैलता है, बाकी किसी रीज़न से फैलता नहीं है। यानी इसमें कोई बड़ी बात या रॉकेट साइंस भी नहीं है। तो अगर इस कंसेप्ट को लेके हम जब रील बनाते हैं तब क्या होता है कि बहुत बार हम क्रिएट अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन जो दिखाया जाता है उससे जो मैसेज इन्फर होके आता है, उससे जो मीनिंग आ रहा है उसके बारे में भी हमको देखना चाहिए। तो मुझे लगता है कि जैसे मैं एज अ एमडैक्स ऑफिशियल भी हूँ और एक कम्युनिटी का हिस्सा भी हूँ, मुंबई कर मैं भी हूँ, तो मैं भी देख रहा हूँ सब। तो इस नज़र से भी आप देखेंगे तो आपके सेल्फ करेक्शंस बहुत सारे हो जाएंगे, अगर वो विजन आप लेके आएंगे तो। हाँ, अगर आपको लगता है कि हमने देखना चाहिए, वी आर रेडी कि हम देखें, लेकिन फिर से आप उसको लेबल मत करना कि सेंसरशिप के जैसा है। ऐसा कुछ नहीं करना चाहते हम लोग। तो रील कितना होता है, 3 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा, या 30 सेकंड से 3 मिनट तक होगा आपका। तो उसमें मीनिंग जो मैसेज है वो सेंट्रल होना चाहिए बाकी किसी चीज़ से। अगर वो मैसेज जा रहा है ना, ऑब्जेक्टिव अगर पहुंच रहा है, तो रील सक्सेस है। यस। और कहीं पर भी गलती तो हर किसी से होता है। गवर्नमेंट ऑफिशियल, अभी मैं बात कर रहा हूँ, मुझसे बात करते हुए गलत हो सकता है, तो उसको करेक्ट करना इज अ वे आउट। कोई एक्शन नहीं होगा, लेकिन करेक्ट वे करना, यानी अगर ये हुआ है तो सेकंड रील उसको पोस्ट करके उसको हम करेक्ट कर सकते हैं। वे आउट आसानी से हो सकता है। People learn from their mistakes, right? So the next question is for Mr. Umesh, sir. Sir, what are the new initiatives MDEX is taking for the next year? थैंक यू। न्यू इनिशिएटिव्स एमडेक्स की तरफ से बहुत सारी हम कर रहे हैं। उसमें हमने यूथ के लिए जो इनिशिएटिव्स है, तो हम कुछ फ्लैश मॉब्स कर रहे हैं। और जो फ्लैश मॉब मुंबई से बहुत ही अच्छी तरह से और कॉलेज स्टूडेंट्स के साथ मिलके हम कम्युनिटी में, रेलवे स्टेशंस पे या फिर स्लम्स में हम करते हैं। और इसे सेंट्रल गवर्नमेंट से भी बहुत ही अच्छी तरह से सराहा गया है कि उन्होंने जो मुंबई के जो फ्लैश मॉब्स है वो पूरे इंडिया में हर एक स्टेट को करने के लिए बोला है। इसके बाद देन हम बाइक रैली भी कर रहे हैं। बाइक रैली जो HIV अवेयरनेस के ऊपर जो हम करेंगे, तो उसमें से भी बहुत सारे बाइकर्स जो है, जो खुद इन्फ्लुएंसर्स है, आप सबको पता होगा, तो उनके साथ भी हम एक बाइक रैली ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। देन आउटडोर एक्टिविटीज़ बहुत सारी है, तो उसमें से भी हम कोशिश कर रहे हैं कि HIV अवेयरनेस हो। तो आप अगर इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया से थोड़ा सा देखेंगे, तो हम रेलवे स्टेशंस, रेलवे के ऊपर, देन रेलवे के अंदर LED स्क्रीन्स जो है बहुत सारी हमारे मुंबई सिटीज़ में, तो उसमें भी हम एडवर्टाइज और जो HIV अवेयरनेस मैसेज है वो देने का हम कोशिश करते हैं। और जो छोटे बच्चे हैं जो HIV इन्फेक्टेड है, अफेक्टेड है, उनके लिए भी हमने एक न्यू इनिशिएटिव मितवा करके जो प्रोग्राम है वो हमने शुरू किया है। तो उनको कुछ एजुकेशनल सपोर्ट, कुछ एजुकेशन के बाद में जो भी जॉब या फिर जो भी कुछ सपोर्ट चाहिए, वो हम कोशिश कर रहे हैं कि उससे हम दे सकें। ओके, थैंक यू। Okay. Mr. Rajveer, have you ever corrected a misinformation online and how did your followers react? Oh, yes, this is something which I usually do not get into. किसी की गलती अगर सुधारो फ्री में, तो वो बाकी लोग बुरा मान जाते हैं। जिसकी गलती सुधारो ऑब्वियसली वो बुरा मान जाता है। So it's like do not correct anyone till you're getting paid for that is what I believe. But I still feel कि अगर कोई गलत कर रहा है which you feel कि like हाँ सोसाइटी के लिए it is going wrong, like sir said कि अगर कोई मिस इन्फॉर्मेशन है या मिसकंसेप्शंस हैं, we need to correct that in a very polite way. क्या होता है कि सब उसको अपनी ईगो पे ले लेते हैं कि लाइक इसने ऐसा बोला और मुझे क्यों करेक्ट करना है, तेरे पास तेरी नॉलेज है, अपने पास रखो। So we are okay to take feedbacks, we are okay to give feedbacks, but at what costs, at what platform? So if I give you say किसी ने कुछ गलत डाला है and especially on health and things,
where we are not qualified to talk, I think I refrain from commenting on those things. But अगर कोई basic है, जैसे sir said, there are only 4 reasons जिससे AIDS हो सकता है या क्या है, you at least need to know there's a difference. STD एक अलग चीज़ है, HIV एक अलग चीज़ है, तो when you're getting into that thing, you need to get all the information before you correct someone, and how it spreads, how it can be stopped, and how it can be cured. Again, are 3 different verticals. Why would someone, like if I say, if I make a video, like I said, कि अगर हमसे कोई गलती होती है, will it be corrected, or again will there be an action? Again, there is a difference. So we are okay to correct also, we are okay to change also, but there needs to be a right platform for that. Absolutely. So next question is from Ms. Seher. What message would you like to give to creators who want to create responsible health content, being an influencer yourself? So it's good if they want to create responsible health content, then they should create responsible health content. That is very As simple as that. हाँ बना ली और जिनको नहीं बनाना है maybe you find a space in health if you don't relate with HIV and if you relate with diabetes or if you relate with just health in general or if you relate with heart diseases, cardiac Anything issues, related to health. anything, you know, तो आप उस पे भी बना सकते हैं because वैसे भी now we are always on our Instagram. अभी भी मैं 2-3 बार तो अपना देख ली हूँ, पहले तो वही हमें कम कर देना चाहिए हमारे health के लिए थोड़ा. I think उससे पहले हम कम करते हैं तो वो better रहेगा. मेरे I'm having brain fog. मैं इतना Instagram देखती हूँ that it's very bad. मुझे लग रहा है मेरी आंखें खराब हो जाएगी, उस पे मुझे content बना लेना चाहिए. इतना मैं Instagram देख रही हूँ. But it is a part of your job. Yeah, but no, but the job bit is you post and you leave, na? You don't sit for hours watch reels. मतलब That is a एक ही problem. side पे. So my eye doctor told me that even if you're doing it, this is just I'm guessing everybody must be doing it. तो आप है ना 1-2-3 मिनट बाद है ना आप ऊपर देखो किसी और चीज़ को phone के अलावा और आप 5 seconds you see that and then you get back. At least your eye will get a little different this thing because I am going on for half an hour. अब तो मुझे delete कर देने का थोड़े time में ये app थोड़े दिनों के लिए. But yeah, y'all should actually even take social media detox where y'all don't delete your page. You know, that's what I do and it really helps me. It really helps me overall, you know, in my entire body language, with my attitude towards everybody. This is something that, you know, y'all should do. Is that don't delete the page but delete the app for a few days when you all don't have a lot of paid promotions or where you all don't have a lot of content, you know, in plan. This is work obviously, so you all have to take it seriously. But Mehraj uncle has entered. I got nervous. My uncle has just come. Yeah, but yeah, so and please make great content on great things other than mimicking others because that's what we watch. And make really short reels क्योंकि हमारा attention span भी अभी खत्म हो गया है. हमें 1 मिनट का कुछ नहीं देख सकते. 10 सेकंड में ही आप अपना मैसेज हमें दे दो. And 10 seconds is enough. अगर 10 इतना seconds, yeah. powerful content रहेगा, 10 seconds is just enough. Yes. Like and he are said. you guys doing trial reels? It's very nice, huh, for your outreach. Do you all know what's trial reels? I thought I just discovered it one day back. That's why I discovered it very मेरे late. phone में तो आया ही नहीं था trial reels 2 दिन पहले तक. है ना हाँ मेरा भी कल ही मैंने एक डाली थी लेकिन ठीक है. And और भी एक चीज़ I forgot. Okay, no problem. We'll get back Yes. to you. Yes. So yeah. next question is for Dr. Navnath sir. What are the most common HIV myths that you hear from young people? Young people are very much aware because of nowadays about the media and all webs, and they go to the sites, then they read about it. Many of the WhatsApp medias and all that they keep on reading, but they are they are not aware about this, how it spreads, how it spreads. They feel it might be spread because of the touching and having food together or staying together or using the same lavatory or everything. But and then they are they are afraid of doing testing also. We cannot have the disease, and once you get tested, then we'll be having the death sentence. Because that is the message. They say that it is not treatable illness in the society at present. But with the treatment of, they can definitely have a better life.
This is the main myth with the children having about Down syndrome, right? Yeah. Right. So next question for Dr. Vijay Kumar sir. What are the two services MDEX provides and people are rarely aware about it? The two services mainly and they are the central one कि हमारे जो भी है कि एमडैक्स लोगों को अवेयरनेस के बारे में आपने पूछा है इसलिए मैं दो चीज़ें यहाँ पे बोलूँगा कि एमडैक्स है ये भी बहुत लोगों को कम लोगों को पता है कि मुंबई डिस्ट्रिक्ट एड्स कंट्रोल सोसाइटी है जो HIV प्रिवेंशन के लिए और ट्रीटमेंट के लिए काम करती है। तो मैं शुरू से करूँगा कि हमारा अस्तित्व जो है बहुत बार अभी पूछा था कि मिथ क्या है। सबसे बड़ा मिथ यही है कि HIV ख़त्म हो चुका है मेरे ख्याल से। HIV के हम सुनते कहाँ हैं HIV के बारे में, ऐसा बहुत बार बोला जाता है। क्यों HIV के बारे में बात कर रहे हो? मुझे भी हम जब प्रोग्राम लेते हैं तब पूछा जाता है कि अभी HIV तो ख़त्म हो चुका है। ये सबसे बड़ा मिथ है मैं बोल रहा हूँ। और सबसे बड़ी सर्विसेज जो हमारी सेंट्रल है वो है कि एक है प्रिवेंशन के लिए हम काम करते हैं कि HIV ना हो इसके लिए अलग अलग जो भी स्टेटास है की पॉपुलेशन है उनके साथ में जुड़ते हैं। मुंबई में हम यहाँ पे लगभग हर महीने में 7 लाख के आसपास फ्री में कंडोम डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। उसके साथ ही जो की पॉपुलेशन है उनमें रेगुलर टेस्टिंग सर्विसेज दी जाती है। कॉलेजेस में लगभग हमारे यहाँ सारे कॉलेजेस में रेड रिबन क्लब है जिससे कि यूथ जो है उनको HIV के बारे में हम बता सके। हर साल हम सेकंड ईयर के 2 स्टूडेंट को हर कॉलेज से लेते हैं उनको पीयर एजुकेटर बोल के और उनको हम ट्रेन करते हैं और हम चाहते हैं कि वो जाके कॉलेज में अपने जो भी दोस्त हैं उनको HIV के बारे में बताए और उनको उसके लिए क्रेडिट आवर्स भी दिए जाते हैं NSS से, यानी उनके मार्क्स में भी रिफ्लेक्ट होता है। तो इस तरह से हमने उसको साझा किया है कि उनके करिकुलम में भी उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आए और सोसाइटी में भी चेंज आ जाए। दूसरा सबसे बड़ा है ट्रीटमेंट सर्विसेज जो हमारा ऑब्जेक्टिव भी है, सेंट्रल भी है। एमडैक्स काम करता है, लगभग हमारे 20 ART सेंटर्स है। वहाँ पे HIV के जितने भी पेशेंट हैं उनको फ्री में पूरी दवाइयाँ दी जाती है। उस सारे ART सेंटर्स में सबसे इम्पॉर्टेंट है केयर, सपोर्ट और ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट लास्ट पार्ट है, केयर एंड सपोर्ट सेंट्रल है, शुरुआत से है, यानी उनके लाइफ में भी जो भी सपोर्ट चाहिए वो सारे सपोर्ट हम देने के लिए तैयार रहते हैं। उनको अगर रेशन कार्ड से लेके आधार कार्ड बैंक का होगा या फिर कहीं पे भी डिफ़िकल्टी आती है तो एमडैक्स उनके साथ जुड़ता है, उनके साथ रहता है। उनमें भी जो बच्चे हैं उनके लिए सर ने बोला वैसे मितवा प्रोग्राम है। जब कोई भी बच्चा HIV के साथ में बड़ा होता है, आप सोचो कि बच्चे के अपने जब उम्र के साथ में बड़े होते हैं तो अपने अपने माइलस्टोन होते हैं, उसके चैलेंजेस होते हैं। हम सब जा चुके हैं यूथ के फेज से, जो हार्मोनल चेंज होता है अपने वो साथ में होता है वो सब, और उसके साथ में अगर HIV है तो वो अलग चैलेंज पोज करता है, उसको कैसे कोप अप करे। उसके साथ में भी हमारा अनुबंध बोल के एक ग्रुप है जिसमें हम सीनियर सिटीजन के साथ में काम करते हैं। सीनियर सिटीजन जो ग्रुप है उनमें सोशल सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर उनमें अगर HIV है तो अलग से एक एम्पैथेटिक व्यू से उनके साथ में जुड़ना चाहिए। इसलिए हर ART सेंटर में हमारा अनुबंध बोल के भी ग्रुप है। तो हमारा जो सेंट्रल वर्क है प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट, यही मेन वर्क भी है और वही हमको आप लोगों के थ्रू लोगों तक पहुंचाना भी है। थैंक यू। So the last question from Mr. Umesh sir. Creators often hesitate to talk about HIV as we discussed. What are the tips you would like to give to them? यस क्रिएटर्स के लिए तो सबसे ज़रूरी है कि उन्होंने HIV के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन लेना ज़रूरी है। और जैसे मैं बोलता हूँ कि हमारे पास बहुत सारे कॉलेजेस हैं, 155 अराउंड कॉलेजेस हैं मुंबई में। तो उसमें जो भी यूथ है और NSS है उसमें हम ये HIV सेशंस लेते हैं। तो उनमें बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं, बहुत सारे मिथ्स रहते हैं। और सबसे पहले तो ऐसा होता है कि HIV और ये क्यों हमें बताया जा रहा है या फिर ये क्यों है।
तो उन्हें मैं बोलता हूँ कि सबसे ज़्यादा मतलब इंडिया जो है वो 3rd नंबर पे है HIV पेशेंट के बारे में। अराउंड 23.9 लाख HIV पॉजिटिव पेशेंट्स है पूरे इंडिया में, और भी नए HIV इन्फेक्टेड पॉजिटिव पेशेंट्स हमें मिल रहे हैं। और मैं उनको बोलता हूँ कि जो भी हम सब लोग हैं या फिर हम बहुत ही संस्कारी लोग हैं, है ना। हम सेक्स और सेक्सुअलिटी के बारे में बात नहीं करते हैं, ठीक है नहीं, मगर फिर भी हम पॉपुलेशन के बारे में 1st नंबर पे है, सबको पता होगा, है ना। तो HIV जो है वो वही है कि अगर कोई HIV सुनता है तो वो डायरेक्टली सेक्स से रिलेट करता है कि वो अगर किसी को HIV हुआ है तो इसने कहीं पे तो मुंह काला किया है, यही हम बेसिकली सोचते हैं कि नहीं। और फिर जो भी HIV पॉजिटिव पर्सन है या फिर जो भी है वो सामने नहीं आता है या फिर वो खुल के बात नहीं कर पाता है, इसके वजह से फिर और भी बहुत सारे सिचुएशंस हो जाते हैं। तो इसमें सही बात यही है कि सब लोगों ने HIV के बारे में पूरी तरह से इंफॉर्मेशन लेना ज़रूरी है। जो भी गलत उनको जो भी मिथ्स और मिसकंसेप्शंस है HIV के बारे में वो भी सही करना ज़रूरी है। तो सब इसमें HIV में तो सबसे ज़्यादा मिसकंसेप्शन यही है, मिथ यही है कि HIV मच्छर के काटने से फैलता है। ये बहुत सारे लोगों को लगता होगा, है ना, कि HIV पॉजिटिव पेशेंट है उसको मच्छर ने काटा तो और किसी को काट लिया तो वो फैल जाएगा। तो ये भी बहुत बड़ा मिथ है, मिसकंसेप्शंस है। तो इसको भी क्लियर करना ज़रूरी है। और आप सब जो इन्फ्लुएंसर है, जो क्रिएटर है, आप सब हमारे मेन पिलर हो कि अभी का जो यूथ है वो पूरी तरह से इंस्टाग्राम, फेसबुक, मोस्टली मुझे लगता है इंस्टाग्राम पे ही सबसे ज़्यादा एक्टिव है ना। तो आप लोग उनके लिए जो करेक्ट इन्फॉर्मेशन है उसके साथ आप बहुत ही अच्छी तरह से आप रील बना सकते हो, उनको उससे अवेयरनेस हम क्रिएट कर सकते हैं। और जो भी कोई हाई रिस्क ग्रुप में है या फिर हाई रिस्क बिहेवियर में है उनको हम बचा सकते हैं। मगर मतलब कोई मल्टीपल पार्टनर है उसके या फिर विदाउट कॉन्डम अगर सेक्सुअल रिलेशन रख रहा है तो उसको आपका रील याद आएगा। जब भी आप कोई रील बनाओगे उसको आपकी इन्फॉर्मेशन याद आएगी और वो अनसेफ सेक्स या फिर अनसेफ बिहेवियर कर रहा है तो वो उससे बच जाएगा। ओके, तो मैं हर बार यही कहता हूँ कि हमारी एक सही जानकारी से हम किसी की जान बचा सकते हैं और गलत जानकारी से किसी की जान ले भी सकते हैं। ओके, सो क्रिएटर्स, यस, सो क्रिएटर्स से मैं फिर से एक बार वही कहना चाहता हूँ, अपील करना चाहता हूँ कि आप सब लोग हमारे साथ जुड़िए। एमडैक्स आपके साथ है। मुंबई डिस्ट्रिक्ट एड्स कंट्रोल सोसाइटी बहुत सारे लोगों को पता नहीं है और क्योंकि HIV है, एड्स है, उससे दूर ही रहना अच्छा है ऐसा लगता है सबको, मगर ऐसा नहीं है। सिर्फ 4 रूट्स ऑफ ट्रांसमिशन है, वो भी सही से जानकारी अगर मिलेगी तो हम जो HIV पॉजिटिव पेशेंट है उनके साथ जो स्टिग्मा और डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो वो हम कम कर पाएंगे और वो खुल के सामने आएंगे और न्यू HIV इन्फेक्शन होने से कम हो जाएगा और बच जाएंगे। ओके, सो थैंक यू। एक ही पॉइंट ऐड करूंगा कि बिना डरे सामने आइए, रील बनाइए। हमने QR कोड भी डेवलप किया है जिसमें एमडैक्स ने जितने भी एनिमेटेड वीडियोस बनाए हैं और जितने भी NACO जो सेंट्रल नेशनल लेवल पे एजेंसी है उनके वीडियोस है वो सारे अवेलेबल है। एमडैक्स HIV केयर बोल के साइट पे जाती है, QR कोड है सिंपल, आपके साथ शेयर किया जाएगा, वो आपको मार्गदर्शन रहेगा। उसमें सारे आपके जितने भी कंसेप्ट है वो क्लियर करने के लिए आप उसका कंटेंट का फ्री यूज़ भी कर सकते हैं वहाँ पे। तो बिना डरे सामने आइए और रील बनाइए। और Thank एक you. दूसरे को लाइक और सब्सक्राइबर फॉलो भी करिए। एक दूसरे को ही हम एक दूसरे को तो फॉलो कर ले। एंड यू ऑल कैन सी माय वर्क ऑन @seher_bhamla ऑन इंस्टाग्राम एंड भामला फाउंडेशन। सो या, और सबसे ज़्यादा एमडेक्स को भी टैग कीजिए। And Mr. Rajveer would like Just like to add one thing. So this is not for the doctors. जितने भी creators है, किसको किसको AIDS का actual full form पता है, प्लीज हाथ उठाइए। सर, हम एजुकेशन की यहाँ बात कर रहे थे, अगर आप इस रूम में देखोगे तो AIDS का फुल फॉर्म है अच्छा इंसान डोंकी समान। AIDS, AIDS, याद रहेगा? सर, आपने करेक्ट नहीं किया मुझे, आपने कुछ क्वेश्चन था कि कोई करेक्ट करेगा, तो आप करेक्ट करना चाहोगे? सो गाइस, व्हेन वी टॉक अबाउट नॉलेज, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दिस रूम।
हम कहाँ से कर रहे हैं, आज इस रूम से करते हैं, एटलीस्ट एक स्टोरी डालते हैं, व्हाट इज एड्स, पहला एक स्टोरी डालते हैं, सारे एमडेक को टैग करते हैं, लेट्स एवरीवन नो अक्वायर इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम्स क्या है, उससे क्या होता है क्या नहीं होता है, क्योंकि मुझे सिर्फ पूरी ऑडियंस में 2 हाथ दिखे हैं, 3 हाथ दिखे हैं, ऑब्वियसली आई विल नॉट पुट इट टू डॉक्टर्स, वो पढ़ते हैं. Right. So we come to the end of this discussion. That was a very insightful discussion. And thank you so much to all our panelists. Huh? Appeal. Anyone wants to appeal from the panelists? एक point from everyone. Yes. Be the change you wish to see in the world. Don't use plastic if possible. Absolutely. And be kind to each other. Even I will follow this, but And this is important. Be kind to each other. So I just appealed everyone कि आज एक एक स्टोरी लगाते हैं, what AIDS is, AIDS का एटलीस्ट फुल फॉर्म से एजुकेट करना चालू करते हैं लोगों को. Let's tag MDEC. So this would be my appeal, and do guys follow rajveer.live. पूरे डिस्कशन में हमने देखा कि हमने आपको अपील भी किया है, तो इन्फ्लुएंसर बोल के आप तो हो, लेकिन हम जिस कम्युनिटी में रहते हैं हम उसी कम्युनिटी का हिस्सा भी है, तो एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारी बनती है कि हम अवेयर करें, हेल्थ के बारे में बात करें, अपने हेल्थ के बारे में बात करें, जो कम्युनिटी है उसके कम्युनिटी जो हेल्थ है उसके बारे में बात करें. तो यहाँ पे फिर से अपील करूँगा मैं कि आप हेल्थ के ऊपर रील बनाए, HIV एड्स जो जिसके बारे में बात नहीं होती है उसके बारे में रील्स बनाए और कंटेंट क्रिएट करें. आपके जो कंटेंट है वो एक मेजर इम्पैक्ट और मेजर शिफ्ट चेंज कर सकते हैं, तो आप आगे आइए. थैंक यू. बहुत सारे पेशेंट्स देखे हमने कि ट्रीटमेंट चालू कर देते हैं, 1-2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना दवाई लेते हैं, फिर बंद कर देते हैं. रीज़न कुछ भी हो उनका, इकोनॉमिकल हो, डिस्टेंस रिलेटेड हो, कुछ भी रीज़न हो, लेकिन वो दवाई बंद नहीं करना चाहिए. दवाई बंद करेंगे तो फिर उनका हेल्थ में इसका बहुत इफेक्ट होने वाला है. तो आई वांट यू पीपल टू अपील टू दिस पीपल कि डोंट स्टॉप योर ट्रीटमेंट. इफ़ यू हैव एनी डिफिकल्टी, go to the ART center, meet my doctors. They will definitely help them. Whatever barriers they have, whether it is a distance related, if they are staying pretty far away from the ART centers, then they can be shifted to the ART center which is nearby their place. If they have traveling this problem, this we can arrange for them. If they have any misconception about the HIV, they can come and talk to us. If there is a discrimination happening with them in the society or anywhere in the workplace, we have Act of 2017. According to that, we can take action against those people who are discriminating them. If they have financial problems, we have social schemes. So through social schemes, we can guide them, we can give them financial assistance also. There are so many other NGOs are there, companies are there, ready to help the HIV positive patients. So whatever difficulty they have, I appeal to my HIV patients. I am from CST division. There are around 42,000 HIV patients in Mumbai. So out of them, many patients are not coming to the treatment after taking treatment for few years, or few days, or few months. I appeal to my patients through you, and I want you people to appeal to them. Please do come to the ART center and start your treatment. Whatever difficulties are there, we are ready to solve. We are there to help them. So I want you people to send message to my HIV patients to come to the ART center and continue treatment, and not to discontinue this. Thank you very much. मैं यही कहना चाहूँगा कि हम सब यूथ को ज़्यादातर इसमें इन्वॉल्व करना ज़रूरी है और यूथ को अवेयर करना ज़रूरी है. तो आप सब क्रिएटर्स को यही अपील है कि आप यूथ के लिए बहुत सारी जो कंटेंट है वो बनाइए, क्योंकि अभी का जो यूथ है, जो जेनजी हम बोलते हैं ना उनको, तो जेनजी यूथ है और जेनजी के तरह ही वो सोचता है ना. तो कॉलेजेस में बहुत सारी शिप शुरू हुई है, मतलब फ्रेंडशिप विद बेनिफिट, देन माइक्रोशिप, नैनोशिप, सिचुएशनशिप, तो ये बहुत सारे शिप है और इसमें वो इस चीज़ को कहीं पे इग्नोर कर रहे हैं. सेफ बिहेवियर, सेफ सेक्स बिहेवियर, या फिर एक दूसरे का सम्मान करना, या फिर जो भी है, तो वो कहीं पे तो मिस कर रहे हैं या फिर वो कम कर रहे हैं.
तो इसीलिए हमारा एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है बहुत बड़ी कि हमें उनको वो चीज़ बतानी ज़रूरी है और सही जानकारी देनी ज़रूरी है और उनको अवेयर करना बहुत ज़रूरी है। और ठीक है, मतलब हम उनको रोक नहीं सकते हैं या फिर उनको बोल नहीं सकते कि आप मल्टीपल पार्टनर मत रखो या फिर सेक्स मत करो, मगर उनको ये इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं कि अगर आप जो भी कर रहे हो वो सेफ बिहेवियर करो, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ सब कीजिए। ओके, सो यही एक मेरा अपील था। या थैंक यू। Thank you all once again for being a part of this journey. So let's continue creating not just content but impact. Thank you.